So any question from today's paper? There was a question which is having two options same. Duodenum, jejunum, ileum. Already for that answer key has changed. Answer is given for both B and C options. ठीक है? Now, last class we have started evolution, right? Evolution chapter is just like a story. Because we are start discussing what past, and past is just like a story. करेक्ट स्टोरी है. तो यहाँ पर देखिए वो स्टोरी में कंटिन्यू होने वाला है. लास्ट क्लास में हम many things we have seen: spontaneous generation theory, biogenesis theory, correct? Then panspermia theory, life came on earth from other planets, panspermia theory. So 3 billion years ago, 3 billion years ago, form of life evolved. First, non-cellular form of life. याद रखना, it is non-cellular form of life. It was not having any true cell. non-cellular है. non-cellular का मतलब क्या है? molecular aggregates. molecular aggregates. कौन से molecular aggregates? RNA plus protein plus polysaccharide. molecular aggregates RNA plus protein plus polysaccharide. These molecular aggregates called protobionts. molecular aggregates called protobionts. एवोल्यूशन पढ़ने का बेस्ट मेथड यही है, फ्लो चार्ट बनाइए. अदरवाइज विदाउट फ्लो चार्ट है ना, मुश्किल है पढ़ना. These molecular aggregates called protobionts. मतलब जैसे हम टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लेंगे, फिर आरएनए डालेंगे उसमें, फिर प्रोटीन डालेंगे, फिर पॉलीसेकेराइड डालेंगे, शेक करेंगे, तो जो भी मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बनेंगे, दोज आर कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स. दे आर प्रीकर्सर्स ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल. याद रखना, प्रोटोबायोन्ट मतलब सेल नहीं है. प्रोटोबायोन्ट आर नॉट फर्स्ट सेल, दे आर नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स हैं. अब प्रोटोबायोन्ट में दो टाइप बता रहा है. फिर प्रोटोबायोन्ट्स क्या हैं? 2 टाइप हैं. एक है क्वार्कसर्वेट्स and one more is microsphere. So जरा सा समझिए स्टोरी कैसा है. 3 billion years ago first non-cellular form of life evolved. non-cellular form, ठीक है. और ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में क्या है? मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स हैं. दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, RNA plus protein plus polysaccharide. These combinations are called molecular aggregates. These molecular aggregates also called protobionts. They are not cell, but they are the precursors. They are the starting material for the formation of a living cell. And these protobionts are divided into 2 groups: coaxervates and microsphere. So what is coaxervates? coaxervate क्या है? देखिए, coaxervates are nothing but न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. ये न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है. न्यूक्लियोप्रोटीन है. और माइक्रोस्फीयर क्या है? बोलते प्रोटीनेशियस है, सिर्फ ये प्रोटीन से बने हुए. If protobionts are made of only protein, they are called microsphere. And if it is made of nucleic acid plus protein, nucleoprotein. And these
Quark surveys and microsphere was looking like this, something like this. Droplets in water. Droplets in water. यही हैं protobions in ocean water. In ocean water. ओशन है, ओशन में ऐसे ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स के. These molecular aggregates are called protobions. Of course, these protobions cannot be called as cell because there is no reproduction here. Cell can be called cell only when it is reproducing, only when it is having genetic system, when it is independent, तब cell बोल सकते हैं. इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन तो नहीं है, ठीक है. जस्ट लाइक इफ यू टेक सम ऑयल ड्रॉप्स एंड इफ यू पुट इन वाटर, they are isolated, they are not going to dissolve in water. So like that droplets are formed, they are called protobions. And origin of life, इससे ये भी पता चला, origin of life occurred in water. लिखिए ये भी पॉइंट, origin of life occurred in ocean water. फर्स्ट लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई? क्योंकि अगर प्रोटोबायोंट बने हैं ओशन वाटर में, तो आगे प्रोटोबायोंट से जो है एक सेल बना होगा लेटर ऑन, ए बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया लेटर ऑन. ठीक है, क्लियर. एंड वन मोर थिंग, यहां पर जो है कुछ बच्चों को डाउट भी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे अर्थ ओरिजिनेटेड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो एंड लाइफ इवॉल्व्ड आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स ऑफ अर्थ ओरिजिनेशन. मतलब अर्थ ओरिजिनेट हुई 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, लाइफ ओरिजिनेट हुई 4 बिलियन ईयर्स एगो. लेकिन फिर वही टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में वही नेक्स्ट पेज पे लिखा है नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स एगो. तो ये जो बताया जा रहा है ना, ये एक्यूरेसी नहीं रहता, यहाँ पे बिलियन ईयर्स में बता रहे हैं हम. सो क्वेश्चन जैसा है अकॉर्डिंग टू आंसर हम देंगे. सेम एनसीईआरटी में दो अलग अलग चीजें लिखे हुए हैं. ठीक है, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ? 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ. 500 मिलियन ईयर्स हैज टेकन टू ओरिजिनेट द लाइफ. ये क्वेश्चन है. नॉन सेलुलर बोल के अगर क्वेश्चन आया तब बोलना है 3 बिलियन ईयर्स एगो. और अगर सेलुलर लाइफ बोले तो क्या बोलेंगे, तब क्या करेंगे? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर्स एगो. जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देंगे हम. ठीक है. आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, how much time taken for the origin of life? 500 million years. And non-cellular form of life कब आई? 3 billion years. And cellular form of life कब आई? 2000 million years ago. And there is one more important theory for the origin of life. One more. So from the last class we are discussing origin of life, how the life started on earth. Some scientists believed in abiogenesis, life came from non-living things. कुछ बोले life come from life, कुछ बोले chemical evolution. So there is one more theory, that is a spatial creation theory. Spatial creation theory क्या है? Everything is created by God. This is what is spatial creation theory. Everything created by God. So our religious scriptures जो भी है हमारे पास लिटरेचर है, उन सब में जो है डिस्क्रिप्शंस होते हैं, how God created sky, then how God created earth, and how created stars, plants, animals. Okay, everything created by God in 6 days.
एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 days। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये रिलीजियस बुक्स में है। ओके, and this theory is based on 3 important facts. Number 1, everything was created as such. Everything is created as such. As such का मतलब है ह्यूमन पहले ह्यूमन था, आज भी ह्यूमन है, फ्यूचर में भी ह्यूमन रहेगा। As such, that means science is not telling like this, है ना? The ancestor of man was gorilla and chimpanzee like, ape like, and then slow evolution occurred and development of modern man. But spatial creation theory says everything is created as such. Diversity was same from the beginning. Diversity was same from the beginning. Beginning, जब से अर्थ बनी है आज तक डाइवर्सिटी सेम है, चेंज नहीं हुई डाइवर्सिटी। ये भी एक सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का? ओके, थर्ड पॉइंट ये है अर्थ ओरिजिनेटेड 4000 years बैक। अब क्या बोलेंगे, बोलिए? 4000 years बैक। अभी आप बोलेंगे साइंस के हिसाब से 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं अर्थ की एज। यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी सेज अर्थ ओरिजिनेटेड 4000 years बैक। ये है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ओके, एंड देयर इज मेजर वीकनेस ऑफ दिस थ्योरी। वीकनेस ऑफ थ्योरी क्या है यहां पर? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। है, ठीक है ना? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस तो प्रूव कर लेंगे आप शायद, है ना? मैग्नेटिक फील्ड की भी एग्जिस्टेंस प्रूव कर देंगे, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस को कैसा प्रूव करेंगे? कोई एक्सपेरिमेंट है तो बता दो। अगर वो एक्सपेरिमेंट से अगर प्रूव हो गया तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी फॉरएवर करेक्ट हो जाएगी। ये थ्योरी को चैलेंज करने वाले कौन थे? सबसे पहला पर्सन, हाँ, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है ये थ्योरी को चैलेंज करता है। चैलेंज, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को चैलेंज करता है। He traveled across the world in HMS Beagle ship, HMS Beagle ship in Pacific Ocean. So that means he visited almost all continents of the world. हर कॉन्टिनेंट को जाता है, ठीक है? So Pacific Ocean, Charles Darwin challenged natural selection theory, and then he traveled across the world in an HMS Beagle. Actually, his interest was to look at the organisms of different continents. He wanted to find out whether the organisms of Asian continent and South American, North American, African सारे ऑर्गेनिज्म सेम है या डिफरेंट है, ये मालूम करना चाहता था। And for that purpose he traveled in HMS Beagle for about 5 years through Pacific Ocean. During his voyage he visited an island. During this voyage he visited Galapagos Island. एक आइलैंड को जाता वो, गैलापैगस आइलैंड को, गैलापैगस आइलैंड को विजिट करता है।
selection theory. What is the main key fact of this theory, main idea of this theory? Darwin fitness is based only on reproductive fitness. Reproductive fitness. डार्विन बोलता था जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, द स्पीशीज विच आर रिप्रोडक्टिवली मोर फिट, they will survive more and they will reproduce more and they will have more offsprings. Fitness here not referring to physical health or mental health. Fitness according to Darwin refers to reproductive fitness. So naturally selected species are having high reproductive fitness, and those species which are having low reproductive fitness, which are giving less number of progeny, which are less offspring, they will be discarded from the nature and they will become extinct. Okay, ये था idea डार्विन का. After visiting which island? Galapagos Island. After observing which bird? Finch bird. Okay. Visited a chain of island. A chain of island. Island पे क्या है पता नहीं. Chain of island, मले आर्किपेलागो. याद रखेंगे नाम, मले आर्किपेलागो. क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, देखिए. अल्फ्रेड वेलास विजिटेड विच आइलैंड? मले आर्किपेलागो. And he also got the idea. He also got the idea of natural selection. He also got the idea of natural selection. Same. डार्विन को जो भी आइडियाज आए, सेम वही आइडियाज इसको भी आते हैं, बट एट डिफरेंट प्लेस, मलय आर्किपेलागो. तो डार्विन यहां पे एक बुक लिख देता, डी ऑफ फॉसिल्स. व्हाट आर फॉसिल्स? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल को क्या बोल रहे हैं हम? और कॉल्ड फॉसिल्स, फाउंड इन अर्थ. Found in earth. The more, the deeper fossil available. The more the deeper fossil available, the more the deeper fossil available, the oldest fossil. Our oldest fossil. So according to spatial creation theory, diversity was same since from the origin, no change. तो fossil भी सेम ही रहना चाहिए. Present life, past life, future तो हम नहीं देख सकते. ओके, past, present तो सेम रहना चाहिए. तो यहां पर बताया जा रहे हैं कुछ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. एज ऑफ द फॉसिल कैसे मालूम करेंगे आप? एज ऑफ फॉसिल, रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग कर सकते हैं आप. रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग कर सकते हैं. रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग वर्क ऑन विच प्रिंसिपल बोल के पूछा है बुक में. रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? हाफ लाइफ पीरियड. एज ऑफ फॉसिल, how to detect? Radioactive carbon dating based on half life period. ओके, जैसे कि कार्बन 14 है. कार्बन 14 जो है एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, और ये रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके होगा. क्या होगा? डीके होगा, और डीके इतना होगा
कि इसका मास रिड्यूस होके क्या होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यही है ना हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, और ये हाफ लाइफ क्या होता है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है। हाफ लाइफ कितने में होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हर एलिमेंट, यूरेनियम है, स्ट्रॉन्शियम है, या कोई और रेडिएक्टिव मटेरियल है जैसे कार्बन 14 है। सो बस हमको याद रखना है हाफ लाइफ पीरियड। तो कोई फॉसिल्स के नाम है आपको पता है? फॉसिल्स, फेमस फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अर्थ डिग करने पर पता चला ब्रैकियोसाउरस है। ब्रैकियोसाउरस क्या है, लॉन्ग नेक डायनासोर। वेदर डायनासोर्स आर अवेलेबल टुडे, नॉट अवेलेबल टुडे, नॉट अवेलेबल टुडे। ठीक है, बट पास्ट, इन द पास्ट देयर वाज डायनासोर लाइक एनिमल्स and they were having very very long neck. Even images are also given in your NCERT, देख के आइडेंटिफाई करने आना चाहिए वो। ब्रैकियोसाउरस की फोटो आप जरूर देखना। स्टिगोसाउरस बोल के डायनासोर, स्टिगोसाउरस, डायनासोर विथ कोनिकल बोनी प्लेट्स, conical bony plates on its back, स्टिगोसाउरस। ठीक है, ट्राइसेराटॉप्स बोल के, ट्राइसेराटॉप्स, डायनासोर विथ 3 हॉर्न्स, डायनासोर्स विथ 3 हॉर्न्स on head. If dinosaur is having 3 horn like structure on head, triceratops. Tyrannosaurus, टायरानोसाउरस क्या है, टॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट डायनासोर बोल के लिखो, लार्जेस्ट डायनासोर, लार्जेस्ट डायनासोर। इन सब के इमेजेस आप देख सकते हैं डायनासोर्स के, आपके बुक में हैं। सो दी एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहा है वो, पास्ट लाइफ वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडेज लाइफ। Whether dinosaurs are existing today? No, not existing. But in the past, dinosaur was existing. Then और कोई एग्जाम्पल है, आर्कियोप्टेरिक्स बोल के, आर्कियोप्टेरिक्स, connecting link between reptile and birds, reptiles and birds. It is also available as fossil. It was an intermediate organism. It was having 50% reptile character and 50% bird character. It was a big question for the scientist because it was having 50% reptile character, 50% birds character. It is very difficult to decide whether Archaeopteryx was bird. So scientists, they believed what evolution has happened and reptiles became birds. Like that, they made the story. Connecting link बोल के नाम दिया उसको। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल जो हैं, आज जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स आर द लिविंग रिलेटिव्स हैं, ये लिविंग रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स के लिविंग रिलेटिव्स हैं क्रोकोडाइल्स। तो डायनासोर्स तो नहीं रहे लेकिन उनके रिलेटिव्स बचे हुए हैं। सो यूजुअली कहां मिलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स कहां मिलेंगे आपको, बॉटम ऑफ ओशंस में मिलेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स।
और फॉसिल की एज कैसे मालूम करेंगे? रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग करेंगे। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से फॉसिल की एज पता चल जाएगी। ठीक है। एंड इवन फॉसिल जो है, फॉसिल में क्या क्या आ सकता है? कॉप्रोलाइट आएगा, फीकल मैटर है ये ऑफ पास्ट एनिमल्स, फीकल मैटर ऑफ पास्ट एनिमल्स अवेलेबल एज फॉसिल। फॉसिल में क्या क्या रहता? फॉसिल बोलते हमेशा बोन्स नहीं, फॉसिल में डेड रिमेन्स आएंगे। फीकल मैटर ऑफ पास्ट एनिमल्स अवेलेबल एज फॉसिल है, या नहीं तो एग्स हैं, एग्स भी मिल सकते हैं। और क्या है? बॉडी इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स ऑन रॉक्स। इम्प्रिंट्स है मतलब जस्ट प्रिंट है बॉडी का। बोन्स भी हो सकते हैं, बोन्स हो सकते हैं, स्केलेटन हो सकता है, या होल एनिमल भी हो सकता है। होल एनिमल, होल एनिमल भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है। Body imprint their organism was slightly different from today's organisms. This is all due to evolution. Next, तो ये थे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। सेकेंड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अर्नस्ट हैक्कल proposed recapitulation theory, recapitulation theory। और बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं इसको, बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। क्या है ये लॉ बोल तो? फाइलोजेनी recapitulates, sorry, ontogeny recapitulates phylogeny, ontogeny recapitulates phylogeny। This is the statement of this theory. Biogenetic law recapitulation theory states ontogeny recapitulates phylogeny। What is ontogeny? ontogeny का मतलब है डेवलपमेंटल स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस को बोलेंगे ontogeny। रिकैपिटुलेट का मतलब रिपीट्स, और फाइलोजेनी का मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डेवलपमेंटल स्टेजेस, रिपीट्स। डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब व्हेन एम्ब्रियो इज डेवलपिंग, डेवलपमेंटल स्टेजेस, रिपीट्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। Just like immediately after the birth of a child, first what the family members they do, they start looking at the eyes, nose, है ना, और मैच करना शुरू करते हैं। the eyes are like that of grandfather, ऐसा कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। सो यहां पर भी वही है, डेवलपमेंटल स्टेजेस है ना, हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। सही है? कहां तक सही है ये? ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, कहां तक सही है जरा देखेंगे। क्लियर है? ये समझने आया आपको? ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, स्टेटमेंट क्लियर? ओके। एग्जाम्पल देखिए, डेवलपिंग एम्ब्रियोज ऑफ फिशेस, amphibians, reptiles, birds and mammals have gill slits,
बिहाइंड देयर हेड, बिहाइंड देयर हेड। यहां पर हेड के नीचे, यहां पर सबको गिल्स होते हैं। ह्यूमन को तो गिल्स नहीं है, लेकिन ह्यूमन के एम्ब्रियो को गिल्स हैं। समझे? ह्यूमन के एम्ब्रियो को गिल्स हैं, बर्ड्स के एम्ब्रियो को गिल्स हैं, और रेप्टाइल के एम्ब्रियोस को गिल्स हैं। फिशेस में तो गिल्स रहेंगे ही। सो दिस इज ऑल टेल अस व्हाई देयर इज सिमिलैरिटी। देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाई देयर इज सिमिलैरिटी? तो साइंस क्या बोलेगा? बिकॉज दे आर ऑल हैविंग कॉमन एंसेस्टर, दैट्स व्हाई they are having some similarity, presence of gill slits. Developing human embryo, developing human embryo first develop two chambered heart, then three chambered heart, and then four chambered heart, and then finally four chambered heart. क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई फर्स्ट टू चेम्बर्ड हार्ट, then three chambered heart, then four chambered? If human are having four chambered heart, then first heart should be four chambered directly in human embryo. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ह्यूमन एम्ब्रियो में फर्स्ट टू चेम्बर्ड हार्ट, देन थ्री चेम्बर्ड हार्ट, एंड देन फोर चेम्बर्ड हार्ट. दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रिपीटेड. Fishes are two chambered heart, right? So human, according to science, humans evolved from fish-like vertebrates. Fish-like vertebrates जो टू चेम्बर्ड हार्ट हैं. तो फर्स्ट हार्ट ह्यूमन का एम्ब्रियो में टू चेम्बर्ड है, बाद में थ्री चेम्बर्ड है, बाद में फोर चेम्बर्ड है. ठीक है. और कार्ल वेन बेयर बोल के और एक साइंटिस्ट है, कार्ल वेन बेयर डिसअप्रूव्ड अर्नस्ट हैक्कल theory, and he stated embryos never pass through all the ancestral characters. ओके, एक दो कैरेक्टर हो सकते हैं, गिल स्लिट्स हो सकते हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स हो सकते हैं, और दूसरे कैरेक्टर्स कहां हैं? डोंट से लाइक दिस, ontogeny recapitulates phylogeny because of only one character. If you say ontogeny recapitulates phylogeny, that means complete evolutionary history should be repeated during development. कंप्लीट डेवलपमेंट में पूरा दिखना, पहले फिश वैसा दिखना एम्ब्रियो, फिर एम्फीबिया के वैसा दिखना एम्ब्रियो, फिर रेप्टाइल की तरह दिखना, और पूरे कैरेक्टर दिखना. सो दैट मीन्स he disapproved Ernst Haeckel hypothesis, and he stated embryos are not passing through all ancestral character. All ancestral character नहीं, few ancestral character दिखे होंगे, but not all the ancestral characters. This is embryological evidence. Anyhow, embryos was having some similarity. Embryos तो कुछ similarity दिखा रहे थे. Fish embryo, amphibian, reptilian, birds and mammalian embryo was having some similarities. ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन के लिए. थर्ड एविडेंस आया, होमोलॉगस ऑर्गन्स. थर्ड एविडेंस क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन, anatomically similar
or origin similar, anatomically similar, origin similar, but functionally different, functionally different organs in a group of closely related organisms. Closely related organisms are called homologous organ. होमोलॉगस ऑर्गन बोलते 3 पॉइंट्स याद है ना आपको, एनाटॉमिकली सिमिलर है ना, ओरिजिन सिमिलर है ना, फंक्शनल में अलग रहना चाहिए, फंक्शन में अलग रहना, तब होमोलॉगस ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, एनाटॉमिकली सिमिलर मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर, एनाटॉमी इज नथिंग बट स्ट्रक्चर, यू कैन से स्ट्रक्चरली सिमिलर आल्सो, स्ट्रक्चरली सिमिलर रहना चाहिए। वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, नॉट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज आल्सो स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकली सिमिलर, ओरिजिन सिमिलर, फंक्शनली डिफरेंट। अगर स्ट्रक्चर में अलग, एनाटॉमिकली सिमिलर रहना चाहिए, ऊपर से अलग दिखता होगा लेकिन एनाटॉमी सेम रहना चाहिए, ओरिजिन सिमिलर रहना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर होमोलॉगस ऑर्गन, नंबर 1, 4 limbs of man, cheetah, whale, bat. 4 limbs of man, cheetah, whale and bat. Why we are taking this example? If you look at the anatomy of 4 limbs of man, man का जो 4 limb है, हाथ है, इसके अंदर जो बोन्स हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पेल, फैलेंजेस, यही बोन्स होते हैं मैन में, चीता में, वेल में, बैट में। अंदर जो डिजाइन है हमारे 4 लिम्ब का सेम है, बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। 4 limbs of man, we are using our 4 limbs for other than locomotion. अदर देन लोकोमोशन के लिए हम क्या भी यूज कर सकते हैं अपने हाथ। चीता के जो है ना 4 limbs यूज कर रहे हैं फास्ट रनिंग के लिए, बैट के 4 limbs यूज हो रहे हैं फ्लाइंग के लिए, और वेल के 4 limbs यूज हो रहे हैं स्विमिंग के लिए। दैट मीन दे आर फंक्शनली डिफरेंट, स्ट्रक्चरली सिमिलर, फंक्शन में अलग अलग हैं, लेकिन अंदर की जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, सेम है। तो 4 limbs ऑफ मैन, चीता, वेल और बैट जो है होमोलॉगस ऑर्गन है, और ये क्लोज रिलेटिव्स ही हैं। ये देख लो, मैन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मैमल है, चीता मैमल है, वेल मैमल है, बैट मैमल है, मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव्स, ये सेम क्लास में आ गए, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव्स बोलते अंकल आंटी, वो नहीं, क्लोज बायोलॉजिकली क्लोज रिलेटिव्स मतलब बिलोंगिंग टू सेम क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये हैं क्लोज रिलेटिव्स एक्चुअल तुम्हारे। सेकंड, होमोलॉगस ऑर्गन का सेकंड एग्जांपल, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. अब ये थॉर्न्स बोलते ऐसे कांटे होते हैं देखिए, और टेंड्रिल बोलते ऐसे स्प्रिंग वायर होता है, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर में सेम कैसा होगा ये? सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड एनाटॉमिकली सिमिलर, ओरिजिन सिमिलर। देखो थॉर्न कहां से निकला, एक्सिलरी बर्ड, टेंड्रिल कहां से निकला, एक्सिलरी बर्ड, दोनों की ओरिजिन सेम ही है ना, बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, सो ओरिजिन सेम है, एनाटॉमिकली सेम है, फंक्शनली डिफरेंट है। थॉर्न फॉर डिफेंस, ये सारे हार्ड होमोलॉगस हैं।
आप बोलेंगे होमोलॉगस, ओरिजिन सेम है, मीसोडर्म से निकलते हैं पूरे हार्ट्स। कहां से निकलते हैं? ये कहां से निकले थे? एक्सिलरी बर्ड से निकले थे ना, ओरिजिन सेम थी ना। हार्ट की ओरिजिन कहां से? हार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम मीसोडर्म, आइदर इट इज इन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, बर्ड और मैमल। सबके हार्ट मीसोडर्म से ही बन रहे हैं, बट द सेम मैनर, not working in same manner. Of course they are doing blood circulation, but not doing blood circulation in the same way. सेम वे में तो काम नहीं कर रहे हो। वर्टिब्रेट हार्ट्स, वर्टिब्रेट ब्रेन्स, वर्टिब्रेट ब्रेन। ब्रेन कहां से ओरिजिनेट हुआ? ये ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म, हार्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीसोडर्म। हार्ट कहां से निकला? मीसोडर्म। ब्रेन कहां से निकला? एक्टोडर्म। ओरिजिन तो सेम हो रही है ना ये, ठीक है। 4 एग्जाम्पल हैं देखिए होमोलॉगस ऑर्गन के, याद रखो अच्छे से। इवन एग्जाम में ऐसा बोलेगा, 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स, 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स एंड बैट। ये होमोलॉगस है या एनालॉगस है? तो आप ऐसा सोचना ना, हॉर्स क्या है? मैमल है। बैट क्या है? मैमल है। दोनों क्लोज फैमिली के हैं, दोनों क्लोज रिलेटिव्स हैं, होमोलॉगस ही आना चाहिए। अब हॉर्स का एग्जांपल बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसा सोचना आप, हॉर्स बैट सेम क्लास में आ जाए। नेक्स्ट, एक वर्ड याद रखिए, HD। व्हाट इज HD? HD का मतलब क्या है? H फॉर होमोलॉगस, D for divergent evolution. That means homologous organ show divergent evolution. Very very important exam में homologous, divergent, analogous, convergent, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के 80% चांसेस रहते हैं हर बार। homologous, divergent, homologous organ show what type of evolution? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट किसको बोलते हैं? एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो डाइवर्जेंट बोलते हैं ना। डाइवर्जेंट पढ़ते होंगे ना। डाइवर्जेंट मतलब मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो कुछ ऐसा ही मीनिंग है यहां पर भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। ये डायग्राम याद रख ले तो बस, डाइवर्जेंट ये है। व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? origin of different types of species, different types of species from a common ancestor, from a common ancestor, origin of different types of species from a common ancestor। मतलब ये पॉइंट जो है ना सेंटर में, वो कॉमन एंसेस्टर है और उससे निकले ये एक स्पीशीज, अनदर स्पीशीज, अनदर स्पीशीज, अनदर स्पीशीज। दैट मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग homologous organ, they are all originated from a common ancestor। ऐसा गेस कर ले रहे हैं हम। जिन जिन के पास homologous organ है उन सब के एंसेस्टर सेम है। 4 लिम्ब ऑफ मैन, चीता, वेल और बैट के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जाएंगे तो सेम ही रहेंगे। बहुत जाना पड़ेगा, बहुत बैक जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, ठीक है, ये होमोलॉगस हो गया। तो व्हाट इज एनालॉगस नेक्स्ट? एविडेंस नंबर 4, एनालॉगस ऑर्गन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं आप? क्यों एनाटॉमी मैच हो रही? सबसे बड़ी क्वेश्चन है।
A very important question. If you say everything is created by God, then tell me why the anatomy is matching between the four limbs of man, cheetah, whale and bat. ऐसा साइंस क्वेश्चन कर रहा है आपके लिए, ठीक है. सिमिलरिटी है क्योंकि उनके एंसेस्टर सेम है बोल के भी आंसर दे रहा है. एविडेंसेस पढ़ेंगे. एनालॉगस ऑर्गन क्या है देखिए. स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली similar organisms. Structurally different but functionally similar organisms. Sorry, functionally similar organs. Functionally similar organs. Structurally different, functionally similar organs are called analogous organ. ठीक है. बहुत सारे लोग एवोल्यूशन पढ़ के एथियस्ट बन गए. सो दैट मीन्स दे स्टार्टेड डिसबिलीविंग गॉड. हमारा इंटेंशन वो बिल्कुल नहीं है. सो वी शुड नो व्हाट साइंस इज टेलिंग एट प्रेजेंट, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन व्हाट previous record or past history, and we don't know exactly what is the history. हमारे को हिस्ट्री उतना एग्जैक्टली मालूम नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स. फॉसिल की बात कर रहे हैं तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की फॉसिल की बात कर रहे हैं. वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट फॉसिल. समझे. जस्ट ऐसा स्कल दिख रहा है, ह्यूमन की तरह दिख रहा है, हो गया ये ह्यूमन का एंसेस्टर है. सो इट्स ए स्टोरी. सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. समझे. सो वी शुड बिलीव ऑन द supernatural power. God has created everything, है ना. we cannot believe that there is an industry without any forerunner or without any engineer. Can you believe that there is an industry without any constructor or engineer? No. Similar fly and birds, wings of butterfly and birds. देखिए कितना डिफरेंस है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स में. बटरफ्लाई के विंग्स कैसे हैं? पेपर के जैसे हैं. पेपर, उसमें ब्लड भी नहीं है, मसल्स भी नहीं है, बोन्स भी नहीं है. वही बर्ड्स के देखो विंग्स, उसमें ब्लड है, मसल्स हैं, बोन्स हैं. सो दैट मीन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर. तो ये हो गया एनालॉगस ऑर्गन. स्वीट पोटैटो and potato. Sweet potato and potato, they are analogous or homologous? Analogous. वो कैसे? Eyes are completely looking different, and eyes of octopus completely looking different. Structurally different, functionally similar. Both the eyes are helping for vision only, but structure wise different. Analogous. Flipper of penguin. पेंगुइन तो एक बर्ड है. एंड डॉल्फिन. फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. डॉल्फिन एक मैमल है. डॉल्फिन के सामने के जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो फ्लिपर्स बोल जाते हैं. फ्लिपर्स की तरह दिखते हैं, स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं. फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स. ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन. ओके. होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन की लिस्ट अच्छे से पढ़ लीजिए. और एक बात याद रखिए, ए सी एच डी, ये ए सी है. ए फॉर एनालॉगस, सी फॉर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. सी फॉर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, हम इसका मतलब कल पढ़ेंगे. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एनालॉगस ऑर्गन शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. होमोलॉगस ऑर्गन शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अब ये कन्वर्जेंट क्या है कल पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.